Okay, fine. So for Azure AD Connect, let's talk about the prerequisite. Means what are the components or services required to set up our Azure AD Connect, and we'll also discuss about the reason why we need to set up our Azure AD Connect services. Okay. Azure AD Connect. So AD Connect is a type of tool, you can say that, right? It's just a simple software. This is Mhm. our Azure portal, right? And we establish our on-premises ADDS in server 2016. Okay, Mhm. we need to set up our client operating system, like multiple clients are also available based on Windows 10, Windows 11 operating system, always considered as a client machine. Mhm. All the clients are connected with our domain controller, correct? So Mhm. in our on-premises domain, we can set up multiple user account. User 1, I'm talking about these all are the AD user, user 2, user 3, Mhm. and user 4, right? According to the number of clients, you need to set up your number of users. Our agenda, basically, it will help you in case of set up a hybrid environment. Mhm. The entire users are able to log in our client computer, and you can control your client machine with the help of group policy. You can manage the GPU. You can configure kind of delegation policy Mhm. permissions, all the services you can manage with the help of these users for our client operating system, correct? Mhm. AD Connect come into the picture once you synchronize. You want to synchronize your all user to Azure Active Directory or Microsoft Intra ID. Number of users that we created on premises by using this particular tool, using AD Connect tool, we can synchronize our on-premises domain controller, अच्छा, right? एक क्वेश्चन आ गया मेरे ज़हन में कि बिकॉज़ Hanji. AD is not only for user, AD for devices, printers, everything. So Yep. AD Connect do everything or only for users? AD Connect is responsible to perform all the tasks. You can Okay. manage your device. Okay, You can not manage only your users. ठीक है. right. Clear? Yes. Great. And fine. So next, let's talk about the prerequisite. What are the prerequisites that we need to keep in mind to set up our AD Connect environment? Over Azure portal, you have to create AD user and make it member of global administrator. Okay, you need Oh, to make it member of global administrator. First step. you do the I build think and make. that's it. Okay. That's it, Okay. right? This is the prerequisite for Azure portal or Microsoft 365. Sorry, Microsoft Intra ID. Talk about the prerequisite that you need to provide in on-premises. Configure ADDS on server computer, right? Definitely it is applicable only for the server PC, server operating system. It may be 16, 19 or 2022. Okay. Second step, uh, download Azure AD Connect tool. Download Azure AD Connect tool. Then install AD Connect on on-premises कहाँ इंस्टॉल करेंगे? Which server? ADDS server, Oh, domain controller. Okay. Mhm. right? That's it. It will ask you some credential. You have to provide the credential as per the requirement, and then it will automatically synchronize all the user to our Azure portal. Now, तो question. इस वाले में कौन सा ऑन प्रेम में कौन सा यूजर होना चाहिए ये सब करने के लिए? वहाँ पे ग्लोबल Admin, एडमिन का अकाउंट बना दिया. local administrator. ओह, लोकल एडमिन. You should use local administrator ठीक है. on on-premises machine. Mhm. ठीक है. Done.
So once we synchronize our user from on premises to uh, means Azure Intra ID, Microsoft Intra ID, what we need to do, we can manage. It's a kind of hybrid environment, हाँ, it's a hybrid, yes. hybrid setup. Means you can manage your user from on premises. You can also manage the users from Azure Mhm. AD portal as well. Mhm. Talk about the features of Azure AD Connect. Features of Azure AD Connect tool, right? Lots of services contained by the Azure AD Connect. Like first one, you should know about the protocol that required to synchronize protocols. Number second, pass password hash synchronization. Password hash synchronization. Second, password writeback. Password writeback. Number third, SSO. Number fifth, custom user synchronization. I don't want to synchronize all the users. We want to synchronize, like on premises you created up to 20 users, but you want to synchronize only 10 different users, which is considered as a custom user synchronization. Cool. These all are the options that we can use to manage our Azure AD Connect. Right? It is used to control and manage both environment, both setup, like cloud setup and our on-premises setup. So this is our agenda. These all are the points that we need to cover in our today's session. ठीक. ठीक है? This is our agenda. So इसके लिए prerequisite सबसे पहले हमें on premises पे आना है और on premises में जो भी डोमेन कंट्रोलर वगैरह है उसको मैनेज करना है. तो दिस इज माय VMware वर्कस्टेशन बेस्ड वर्चुअल मशीन. यहाँ पे हमने पहले से ADDS सर्विस एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है. So let me turn on our domain controller. This is our domain controller computer and AD पहले से इसमें इंस्टॉल है तो I don't think we need to perform much task. AD हमारा already available है. We just need to create users and the same users will synchronize with our 365 portal. Not 365, Microsoft Intra ID portal. Clear? क्लियर. तो इसमें अभी जब आपने कहा 65 तो क्या ईमेल यूजर भी जाएंगे इसी में, क्योंकि ईमेल तो We होती can है. see day one we discuss about Azure AD. It is applicable to manage lots of different platforms. 365 कभी यूज करना, कभी इंट्यून यूज करना, कभी एक्टिव डायरेक्टरी यूज करना, सॉरी एवीडी यूज करना. तो ये जो डोमेन कंट्रोलर है ना, विच इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द सेटअप. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ एजर के लिए करेंगे. नो, वी कैन ऑल्सो यूज द सेम यूजर्स फॉर ईमेल सर्विसेज. 365 में भी इसका हम यूज कर सकते हैं. इवन कंपनी करती है. तो एडी कनेक्ट से यूजर जो है वो सिंक कर लिया एजोर पे और उसके बाद उस वो ईमेल वाला भी चला गया. मतलब यू डोंट हैव टू डू ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस सेपरेटली नहीं नहीं करना पड़ेगा. वो यूजर नहीं गया, नहीं सिंक नहीं हुआ नहीं तो हो नहीं गया. नहीं. सी, एज्योर की जो इंट्यून की जो सर्विस है ना, वो तो हमें देना ही पड़ेगा. जो लाइसेंस वगैरह है वो तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. ठीक है. आप 365 का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजर्स आपको क्लाउड पे नहीं बनाने पड़ेंगे. सिंपल सी बात है. यूजर्स वी कैन टेक केयर द यूजर्स एक्टिविटी फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस सर्वर. ठीक है, हमें वहां क्लाउड बनाते पे, जाओ और कनेक्ट करते हाँ, जाओ. यहाँ पे बनाते जाएं, वहां पे वो हाईलाइट होता जाएगा. वहां पे हम डायरेक्टली जो है उसको सिर्फ लाइसेंस देना रहेगा बस. बिकॉज विदाउट हाँ, लाइसेंस वी कांट डू एनीथिंग. यस यस. क्लियर? सो दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर. हाँ, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन जो आप इस्तेमाल करेंगे ना, मेक श्योर कि उस मशीन पे, ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर पे एटलीस्ट 20 एमबीपीएस का इंटरनेट स्पीड का प्लान होना चाहिए. मिनिमम 20 एमबीपीएस की स्पीड आपके पास होनी चाहिए. ऑल गुड? गुड. ग्रेट. सो लेट मी आइडेंटिफाई कि हमारे सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं.
So इसके लिए I'm just going to open ncpa.cpl and I wanted to put my network adapter in automatic format ताकि हमारा जो रूटर है वाईफाई कनेक्शन जो है इसको आईपी एड्रेस असाइन कर सके आसानी से। उसका DHCP लेंगे। डीएससीपी के थ्रू हमें आईपी मिल जाएगा, हमारे सिस्टम पे इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट, राइट? सो दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। तो वहां पर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी राउटर पे? Not required. It will give you the IP address automatically. ओके, तो स्टैटिक डजंट वर्क एट ऑल अगर आप ये No, करोगे no. तो? If you have a information about gateway and all, तो static पे भी IP इंटरनेट एक्सेस होता है। अच्छा, It's not mandatory कि केवल हमें अच्छा, इसी पे एक्सेस करना है। तो So ईज़ी for हो जाएगा कनेक्शन। हाँ, बेटर एक्सेस ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे एक हम छोटा सा ब्राउजर इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट वी कैन यूज अवर इंटरनेट प्रॉपरली। आई में क्या होता है, बहुत बारी सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी चीजें हम परफॉर्म नहीं कर पाते, लाइक यू कैन नॉट डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर समटाइम, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ सेटिंग टू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, और फिर कुकीज वगैरह को अलाउ करना पड़ेगा, विच इज नॉट विच इज दैट विल टेक मच टाइम। नहीं तो IE कौन यूज करता है आजकल? एज नहीं करता आप लोग? हाँ, एज की बात कर ले, बोथ आर बिल्ट इन ब्राउजर ना, सो whenever we set up our built-in browser then definitely it will impact, ठीक it will है, take much time, right? तो ठीक है, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू डाउनलोड वन गूगल क्रोम, हाँ, और जो ईज़ी भी है थोड़ा। एक्टिविटी करनी है हम गूगल क्रोम से करेंगे। ओके, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू add, in case of using AD Connect, maybe it will ask you please download one another software which is .NET Framework 4.7.2 or 4.5 point something or 4.2 something, अभी ये बता देगा हमें कि कौन सा हमें .NET Framework चाहिए, and accordingly we'll download it, ठीक है? बट ठीक है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डाउनलोड छोटा सा टूल जो है हमारे पास, Azure AD Connect वाला। Just need to download Azure AD Connect tool। Azure AD Azure, कनेक्ट टूल फ्री है या ये उसके साथ है हमारा जो Azure का काम है? ठीक है, यू ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट साइट। तो यहाँ पे V2 Azure AD Connect V2 ये अपने पास आ गया, आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट। ये क्वेश्चन है कि ये डाउनलोड कर सकते हैं और यू हैव टू हैव सब्सक्रिप्शन और समथिंग? नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो इसके लिए हमें ना कोई चार्जेस देना है, ना हमें इस पे मीन्स कोई लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। वो इसलिए कि इट्स वो अ चाह रहा फ्री। है कि भाई ज्यादा से हाँ ज्यादा जी, लोग कनेक्ट। बिकॉज सी, अगर कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी देन डेफिनेटली क्लाइंट वांट टू मूव क्लाइंट डोंट ऑन। वांट टू मैनेज बोथ द पोर्टल। भाई ऑन प्रोमाइसेस भी बंदा देख रहा है, उसके लिए अलग इंजीनियर हायर किया है, एज्योर एडी के लिए अलग इंजीनियर हायर किया है, वो चाहता है कि हम ऐसे इंजीनियर को हायर करें जो दोनों पोर्टल को मैनेज करे प्रॉपर तरीके से। तो एडी कनेक्ट का यूज करेगा कि जो ठीक है, बंदा ऑन प्रोमाइसेस पे देख रहा है वो एज्योर पे देखेगा, या एज्योर पे जो देख रहा है वो ऑन प्रोमाइसेस को भी हैंडल कर देगा। ऑल गुड। गुड। Another prerequisite that we discussed कि आपका जो पोर्टल है ना, I'm talking about the Azure portal. Over Azure portal, you have to create one user, and user must be a member of global administrator, I think. What do you think about the global administrator or member of global administrator? वो अब तो जस्ट लाइक ओनर की तरह से वो सारा उसको डील करता है, ही हाँ, कैन डू एवरीथिंग। means whenever we create our normal user, it is not responsible to perform any additional task. वो सिर्फ लॉगिन कर देगा, लॉगिन में जितनी भी ऑप्शंस आप उसको देंगे बैकएंड से सिर्फ उतने ही टास्क परफॉर्म कर पाएगा, राइट? But once you assign the role of global administrator, you can perform all the task. या लगभग लगभग 75% टास्क आप एडमिन वाले हैंड ओवर कर सकते हो एडमिन से। के जो एक्टिविटी है ना, वी कैन मैनेज बाय सेल्फ, लाइक वो सारे टास्क हम अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर से करा सकते हैं। क्लियर? तो लेट्स टॉक अबाउट, सो फर्स्टली वी नीड टू ओपन आवर पोर्टल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक यूजर, अगर अपने पास पहले से यूजर है दैट वेल एंड गुड, अगर यूजर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन प्रोसीड एंड क्रिएट न्यू यूजर, और उसको हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देंगे। ऑल राइट,
अच्छा, ग्लोबल एडमिन का एक ये भी है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वो परमिशन असाइन कर सकता है दूसरे यूजर को, हाँ जी, हाँ जी। या लाइक ओनर की तरह। चलिए, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 360 माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पैनल पे जाएंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी क्रिएटेड। तो यहाँ पे अपने पास 2 या 3 यूजर हम ऑलरेडी बना के रखे हैं यहाँ पे पहले से ही, कल हमने डिस्कस किया था। और ए डब्ल्यू एस पे हमने आई थिंक ग्लोबल का ग्लोबल एडमिन इसको असाइन कर रखा है। ओपन Also यूजर्स document. प्रॉपर्टीज, go to the assigned role. Under the assigned role, it will give you the information कि ये कौन से रोल का मेंबर है, या आप इसको कौन से रोल का मेंबर बनाना चाहते हैं। बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो अनफॉर्चुनेटली we don't have us we haven't assigned any kind of role to our AWS user account, correct? गो टू द ऐड असाइनमेंट, और यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल, और ये रोल्स आपके बिल्ट इन रोल कंसीडर किए जाते हैं। एज्यूर एडी में अगर क्वेश्चन आएगा, सो वो आपसे यही पूछेंगे, हाउ मेनी रोल्स, नॉट नॉट नंबर, which roles are built in, which roles are considered as a built in role, and do we have any option to create our own role? दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं in case of interview, in case of the examination as well. Mhm. So So can you add role? Yes, we can add role. Built in हाँ, we कितने can, सारे ये तो याद नहीं रहेंगे मुझे। नहीं वो नंबर पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट खुद हर 15 to 20 days पे रोल्स को ऐड करता रहता है। अच्छा। गॉट इट। व्हेन आई स्टार्टेड my journey with Azure in 2016, October 2016, you can find only 5 different roles in the built-in panel. ठीक है ना? सिर्फ 5 रोल थे, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स इट। और आप अभी देखिए, these all are the built-in role, means as per the requirement, because you know that कोई भी चीज immediately perfect नहीं बन सकती। हम एक्सपी से काम करना स्टार्ट किए थे, विंडोज एक्सपी, तब लगता था एक्सपी कितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट डे बाय डे विस्टा आया, 7 आया, 8 आया, 10 आया, 11 आया, आने वाले टाइम पे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे। सो एज इट इज, जो अपने पास बिल्ट इन रोल है ना, उनकी नंबर ऑफ लिस्ट तो याद करना कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ फ्यू रोल्स। 5 से 7 रोल आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, कि ऐसे जो रोल्स हैं, ये रोल्स हमारे बिल्ट इन कंसीडर किए जाते हैं, एंड वी कैन क्रिएट अवर ऑन कस्टम रोल। ठीक है, आई एम गोइंग टू सर्च, इतने सारे रोल्स हैं तो डेफिनेटली हमें सर्च करना पड़ेगा। आप ग्लोबल लिखेंगे, इट विल गिव यू ऑप्शन ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट? नाउ पर्पज यूसेज ऑफ दिस रोल, सो डेफिनेटली हर एक रोल्स के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की गई है। कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आइडेंटिटीज। अगर आपने किसी यूजर को इस पर्टिकुलर रोल को असाइन कर दिया, डेलीगेट कर दिया, सो आपका यूजर जो है एडी की सारी सर्विसेज को बड़े आराम से मैनेज कर पाएगा। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माय अकाउंट। हम ये यूजर आईडी पासवर्ड तो किसी को नहीं देंगे ना, दिस बिकॉज दिस इज द रूट अकाउंट। because if I shared the details about my root account, बंदा हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा वहां से, right? And also can check the billing management, सब्सक्रिप्शन डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मींस। सो यू ऑलवेज प्रोसीड विद ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। एडी से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा, बट बंदा कभी भी बिलिंग से रिलेटेड या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। ऑल गुड? We are authorizing our normal user act as an administrator, but only 60%, only 50%, or only 70%, not 100%. Clear? Add. So we successfully added our global administrator role for AWS users. तो I think Azure की जो prerequisite है वो हमने fulfill कर दी। अब हमें Azure पे कोई टास्क नहीं परफॉर्म करना। I'm moving ourselves to the on premises. All good?
सो इसको हम करते हैं क्लोज, नॉट क्लोज, हम मूव करते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस पे जहां पे हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, अगर हमें हाइब्रिड सेटअप बनाना है तो। This is our on premises machine and we have already downloaded what? We have already downloaded. Just give me 1 minute. AD Connect हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं और I'm just going to use the same tool to synchronize the user. But before that, let me check how many AD users are available. तो मैनेजर ओपन करेंगे, सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। वैसे मैंने पहले से बना रखा है कुछ यूजर यहाँ पे। अब देखो क्लास यूजर बना है, टेलनेट यूजर बना है, डेमो ओयू के अंदर एडब्ल्यूएस एंड टाटा यूजर बना है। तो एक क्वेश्चन है कि कुछ यूजर तो आप माइग्रेट कर, लेकिन वो बाद में पता चलेगा कि कौन सा यूजर हमने Azure कनेक्ट AD कनेक्ट से माइग्रेट किया है Azure में, और कौन सा यूजर हमने Azure में ही बनाया है, वो हम बाद में देखेंगे। ऐसे मेरे ध्यान से one by one please. हाँ हाँ, राइट, नहीं यू ऐसे हैव सर। ऑप्शन टू फिल्टर विद इन सेकंड, यू कैन फिल्टर। एक नाइस। मिनट के अंदर सारी डिटेल निकाल के, भाई ये गेस्ट वाले बंदे इधर जाएंगे, ये हमारे बिल्ट इन वाले बंदे हैं इनको अलग रखो, ये हमारे हाइब्रिड वाले यूजर्स हैं ठीक, इनको अलग कैटेगरी में रखो। ठीक एज है। एडमिन आपके पास जी, बताओ। ऑप्शन है, यू कैन इजिली सेग्रीगेट द यूजर्स क्वालिटी। ठीक। चलिए, तो हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस? एक, दो और दो इसमें हैं अवेलेबल, एडब्ल्यूएस एंड टाटा। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 4 ठीक। हो गए। 4 कहाँ से गए? ठीक है, दो ये हो गए और एक क्लास हो गया, एक टेलनेट हो गया, 4 हो गए। अच्छा, OU अलग है उनका, ठीक है, डेमो OU में है, कहीं पे हो, सही है। है तो डोमेन में ही ना। हाँ हाँ। गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड। एडी कनेक्ट इंस्टॉल करेंगे, कुछ प्री रिक्विजिट होगी, ये आपको बोल देगा कि ठीक है, यू आर ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज दिस पर्टिकुलर एडी मशीन टू 360 थ्रू एज टू Azure Intra ID, Microsoft Intra ID, so you need to download some supportive application। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या पूछता है हमसे। हाँ, 4.7.1, this is the .NET framework that you need to download and install on your base machine. So I'm going to mention the tool name as well in our prerequisites। All good? ये सारी प्रीरिक्विजिट तो हमने पहले से डिस्कस की थी, बट यहाँ पे एक प्रीरिक्विजिट और है which is .NET framework 4 point 4.7 something, no 4.7.1। 4.7। हर वक्त सीक्वल के लोग कह रहे होते हैं ये अपडेटेड इंस्टॉल करो, ये करो .NET। चलो, सो वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल गूगल क्रोम, तो यहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, डाउनलोड कर तो लिया। अच्छा, .NET, अच्छा इसको DOT करते हैं मेरे ख्याल में, DOT में .NET। 4.7.1। Always try to download software directly from Microsoft site। छोटा सा टूल है, so immediately you can download on your server machine and install। इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं फटाफट से। डोमेन कंट्रोलर। इट्स अ टाइप ऑफ पैकेज। तो जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने बेस मशीन पे ना, इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट आवर सिस्टम। ओहो, डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। हाँ जी, जब आप पैकेज, बिकॉज दिस इज द पैकेज, इट विल इम्पैक्ट टू द डायरेक्टली आवर रजिस्ट्री, जो सिस्टम की रजिस्ट्री है उस पर ये इम्पैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली रीस्टार्ट मांगेगा ये, बिना रीस्टार्ट किए हमें
आगे नहीं जाने देंगे, like we are unable to install the Active Directory domain services. Sorry, AD Connect tools. एंड ये 16 से नीचे वाले वर्जन में नहीं जा रहा है, 12 में नहीं करेंगे। नहीं, अभी रिसेंटली इन्होंने V2 लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट Azure AD Connect का, तो जो अप्लीकेबल नहीं है ऑन प्रोमाइसेस पे, अगर आपका 2012 है तो 2012 के लिए, क्योंकि आउटडेटेड है माइक्रोसॉफ्ट 2012 पे इसको सपोर्ट देना भी बंद कर देगा इन अपकमिंग डेज। हम 2008 और 12 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिकमीशन का। हाँ, डिकमीशन मोस्टली क्लाइंट जो है डिकमीशन कर रहे हैं पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। Then mandatory to restart. So let me restart our system. And once our system is ready to use, we'll proceed to install Azure AD Connect. और फिर हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे। ऑल गुड? तो ये हम हाइब्रिड में तो करेंगे, भाई हम एडी कनेक्ट से कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल जो माइग्रेशन करेंगे, अगर हम हाइब्रिड कोई क्लाइंट नहीं चाहता है तो वो भी इसी से करके करके खत्म करेंगे ऑन प्रेम, या उसका क्या तरीका है? नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, एक तो हमने हमारा हाइब्रिड एनवायरनमेंट हम चाह रहे हैं, एज्योर हमारे पास है, हमने एडी पे ये टूल इंस्टॉल किया, ग्लोबल एडमिन किया और सारे यूजर ट्रांसफर कर दिए एज्योर पे, मगर हम मैनेज उसको एज्योर पोर्टल पे भी कर रहे हैं और एडी एक्टिव डायरेक्टरी पे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो कि भाई सारे पूरा का पूरा ही ऑन प्रेम से डाल दो उस पे एज्योर पे, तो भी हम यही टूल यूज करेंगे, और या समथिंग एल्स, कोई और चीज? नहीं, for migration we have a multiple way to migrate. You are talking about lift and shift, ठीक है? So in case of lift and shift, you always proceed with the help of Azure Migration Service, which is a part of Architect. Azure Architect का content है वो. How to migrate our on-premises servers, on-premises database, on-premises application, ये सभी आपके Architect वाले part में आते हैं. क्वेश्चन इसमें भी था ना, इसमें भी ठीक है, 10 से पता होना चाहिए कि माइग्रेशन के जरिए जाता है, नॉट
Our system is ready to use. Let me proceed and install it. अभी हमने इसकी full requirement जो है fulfill कर दी, and I think we can synchronize now, right? Okay, so let me install it again. And wait for few minute. चलो अभी तो एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने इसकी प्रीरिक्विजिट फुलफिल कर दी है, एंड लेट्स वेट. Next, use express setting. This is the first installation, so you always proceed with the express setting. ठीक है, कस्टमाइज तब करेंगे जब हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है और उसमें कुछ चीजें आपको कस्टमाइज करनी है अपने अकॉर्डिंग. सो लेट्स प्रोसीड विद यूज एक्सप्रेस सेटिंग. सिंगल फॉरेस्ट में ओके यहाँ देना पड़ेगा. ये ग्लोबल एडमिन जो बना AWS. अब AWS यूजर यहाँ पे असाइन करेंगे. aws@teachmecloud.in और यहाँ पे पासवर्ड, राइट? जो भी उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड है वो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे. दिस इज अनदर पैनल और आपको यहाँ पे क्या देना है, आपका डोमेन नेम यानी ऑन प्रोमाइसेस का डोमेन नेम जो है और उसका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट. तो हमारा जो डोमेन है हमने सेटअप किया है which is class.com. So you can identify. AD पे जाएंगे, class.com. ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया. हम यहाँ पे class.com मेंशन कर देते हैं. class.com/admin. अच्छा ये और लोकल है क्लास डॉट कॉम लोकल पे. का पासवर्ड है ना. लोकल कैसे होगा? class.com तो डोमेन है हमारा. हाँ तो लोकल पे ही तो इंस्टॉल है ना class.com पे. class.com डोमेन अकाउंट है ना, लोकल तो नहीं है. लोकल मेरा ख्याल था जैसे लोकल जो अकाउंट होता है. नहीं, ये तो डोमेन अकाउंट है. class.com is your domain. class.com डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटर लोकल यूजर. जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है. ये डोमेन एडमिन अकाउंट नहीं है. हाँ डोमेन ही है ना, जो डोमेन रहता है, जो यूजर रहता है एडी इंस्टॉलेशन के बाद वो डोमेन बन जाता है. अच्छा अच्छा ठीक है. नेक्स्ट, ऑल गुड. यहाँ पे सब कुछ क्लियर है. मे बी नाउ इट विल टेक टाइम. ये ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब आप एग्जाम दोगे ना, तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट आपको मिल सकती है. ठीक है, एग्जाम के टाइम पे. And the meaning of this particular screenshot or this particular wizard, ये आपसे पूछ रहा है कि your domain is. आवाज बंद हुई है ना. ठीक है, वेट. हाँ, ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने डोमेन ऑन प्रोमाइसेस कॉन्फ़िगर किया है ना, which is not matching with your Azure domain. Got it? क्योंकि Azure पे हमने डोमेन कौन सा लगा रखा है, teachmecloud.in का,
और ऑन प्रोमाइसिस डोमेन जो है हमारा वो है क्लास class.com का, which is totally opposite to each other. So ये पूछ रहा है, are you okay to synchronize your user with class.com because your user will be not associated with teachmecloud.in अगर आप ऊपर पे मैनेज करेंगे तो। ठीक है। ईमेल एड्रेस का क्या होगा? ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे एंड वेट। अब यहाँ पे फाइनल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे जाएंगे। अच्छा, तो इट इज पॉसिबल कि टू डिसिमिलर डोमेन नेम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर टीच मी है, यहाँ क्लास है, तो यू कैन स्टिल माइग्रेट यूजर, कनेक्ट यूजर। अब ये जो टूल है ना बैकएंड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही हम अपने एडी के पोर्टल पे जाएंगे, Azure AD के पोर्टल पे, एंड यू विल फाइंड ऑल द यूजर्स। यहाँ पे जो यूजर्स की लिस्ट है वो यहाँ पे मिलना ही स्टार्ट कर देगा। ठीक है, currently we are getting only 3 different user and all the users are on premises. ये जो ईमेल एड्रेस उन्होंने ऑन माइक्रोसॉफ्ट दिया है, टीच मी क्लाउड, टीच मी, ये ऑन, ये तो क्लाउड के यूजर थे, टीच मी क्लाउड के यूजर थे। ये तो प्रिंसिपल नेम तो अभी नहीं आया अभी तक कोई भी। I'm saying you will find the users that we created on premises after ठीक the है, installation. ठीक है, ठीक है, चल रहा है, चल It is in रहा progress. है। थोड़ा सा टाइम लगेगा because it is performing the task to connecting both the portal और ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड में कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस का इंटरनेट स्पीड है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। हाँ, ये हम ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सप्रेस राउट भी वो कहता है कि आप, मैंने तो गूगल किया था तो अगर वो हो जाए तो भी इजीली हो जाएगा, या वो सॉरी, एक्सप्रेस राउट की भी एक है जो कनेक्ट करता है आपका ऑन प्रेम का नेटवर्क टू, तो अगर वो हो तो जल्दी कर जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। The यही होगा tool इंटरनेट। is not based on the specific network. Express route can also perform the task with the help of on-premises internet speed. वो अपना खुद का इंटरनेट नहीं देता है, which is also depend on the on-premises internet ना। उस VPN हो गया आपका, एक्सप्रेस रूट हो गया, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही जुड़े रहते हैं। अगर आपके ऑन प्रोमाइसेस पे इंटरनेट नहीं है, यू आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर बोथ द सर्विसेज। ना आप एक्सप्रेस रूट कॉन्फ़िगर कर पाओगे और ना ही आप अपने वीपीएन का सेटअप कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली बैकएंड में जो रोल प्ले करेगा वो हमारा इंटरनेट ही करता है। तो हम कुछ भी लगा ले, ठीक है ना, वो दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों कि एक्सप्रेस रूट को बहुत बढ़ा चढ़ा के माइक्रोसॉफ्ट ने प्रेजेंट किया, ये सिक्योरिटी देता है, ये जो स्पीड देता है। आज भी क्लाइंट 80% क्लाइंट प्रेफर करते हैं वीपीएन कॉन्फ़िगर करने का। तो सिक्योर एक्सप्रेस होता है रूट ना, सिक्योर नहीं होता एक्सप्रेस राउट की एक टनल वो है आपके और उसकी। see, no one can trust on the dedicated resources, and express route is a type of dedicated resource of Azure. So they are just experimenting कि भाई Azure sorry VPN से ना better service हम देंगे। तो वीपीएन थर्ड पार्टी VPN है। VPN is a type of copyrighted service। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, VPN is a type of copyrighted। So दुनिया यूज कर रही है, हर एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हर एक इन्वायरमेंट यूज कर रहा है। So definitely
mostly client proceed with this particular option. चलो भाई, कंग्रेचुलेशन, मुबारक। चलो अब आ जाते हैं, बैक करते हैं अपने पोर्टल पे, देखते हैं कि कुछ चेंजेस है कि नहीं। अरे यार, सो वी आर एबल टू गेट ऑल द यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसेस। ठीक है, जरा सा यूजर प्रिंसिपल नेम को जरा सा बड़ा करेंगे। आई वांट टू सी कि ये इन वाले यूजर का क्या प्रिंसिपल नेम है। हाँ जी। सबको ऑन microsoft.com, आउटलुक 45। ये किसने मेंशन किया था आउटलुक 45? जब हम ये वाले दिस जो है राज दिस इज द टेनेंट दैट वी आर यूजिंग पोर्टल के ऊपर। राज इज द और डिस्प्ले नेम, राज इज द डिस्प्ले नेम। ये डिस्प्ले नेम है जो ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर रखा है क्लास वगैरह। लेट मी शो यू tsa.msc। टेलनेट को भी हमने शायद डिस्प्ले नेम नहीं, टेलनेट तो ठीक है। क्लास को यहाँ पे देखो, इसका हमने नाम दे रखा है राज, डिस्प्ले नेम। चलो इसको बदल देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब सिंक्रोनाइज करेंगे इसको तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और हमें इसी नेम से दिखने लगेगा, टाटा नाम से और AWS के नाम से पोर्टल के ऊपर। बट सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या यू नीड टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेप, यू नीड टू फॉलो द सेम स्टेप्स अगेन। मुझे ये देखना है कि कौन सा यूजर ऑन प्रेम का है और कौन सा यूजर हम वहां से ना एज्योर का है। Just need to click on add filter. Which types of user you want to synchronize? आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि हमारा कौन सा यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे है। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस सैम अकाउंट, ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज डेट एंड टाइम, ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्स, ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल्ड। सैम अकाउंट से नहीं होगा, सैम का ऑन प्राइम सैम अकाउंट नहीं होगा। दूसरा कोई भी नहीं है फिर। ठीक है, अगर हम यहाँ से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अब देखिए ये ऑन प्रोमाइसेस का पैनल दिया, ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल, सॉरी, ऑन प्रोमाइस सिंक्रोनाइज इनेबल्ड पे जाएंगे, ओ से होगा ये वाले ना। पैनल पे। ठीक है, ये सिंक तो आपको वही फिल्टर करेगा करके ना। यूजर दिखा दिया, ये सभी ऑन प्रोमाइसेस के हैं। तो मैं तो इसको एक ओयू बना के अलग से डाल दूं कि भाई पता चल जाए कि सारे लिंक से आ रहे हैं। ओयू यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ओयू नहीं, सिंक्रोनाइज ओयू नहीं अपना होती। बना लो। यहाँ पे, यहाँ पर ओयू बनता है नहीं, इंसान। यहाँ पे ओयू नहीं बनता। वी आर अनेबल टू फाइंड द ओयू ऑफ ऑन प्रोमाइसेस। वो सिर्फ ऑन नहीं, प्रोमाइसेस पे अपनी कंटेन यहाँ करने का काम करेगा। यहाँ पर अपनी नहीं होती, एज्योर की ओयूज नहीं होती। ग्रुप होते हैं, ओयू नहीं होते। अच्छा, ग्रुप होते हैं। ओह, दिस इज न्यू। ये तो डिफरेंस है फिर। ठीक है, समझ आ गया, आपने यूं कर दिया। और सिंक तो वही करेगा जो वहां से आया, दूसरा थोड़ी करेगा सिंक। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर्स जो है हमारे सिंक्रोनाइज हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये ऑन प्रोमाइसेस माइक्रोसॉफ्ट.com पे सिंक्रोनाइज हुए हैं। राज एंड AWS, टाटा, टेलनेट, क्लास, ये जितने भी यूजर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सभी यूजर हमारे ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज्ड हुए हैं। करेक्ट। नाउ व्हाई all the users are connected with this particular domain name? Because जब हम AD Connect इंस्टॉल कर रहे थे तो इसने हमें वार्निंग दी थी कि you are trying to synchronize your users from on-premises AD to Azure AD, but ध्यान रखना आपका डोमेन नेम मैच नहीं कर रहा है। आई एम गोइंग टू सिंक्रोनाइज इट, हम यहाँ पे आपके यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर देंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आपके यूजर जो हैं वो teachmecloud.com से जुड़ पाएंगे या teachmecloud.in से जुड़ पाएंगे, because we are not able to match both the domain। अगर हम यहाँ पे डोमेन ऑन प्रोमाइसेस पे भी teachmecloud.in के नाम से तैयार किए होते तो हम सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर पाते विद सेम नेम, विद सेम डोमेन नेम। क्लियर। स्टैंडर्ड तो यही है ना, ऐसे ही होना चाहिए। जब आप कर रहे हैं ये काम तो आप एज्योर पे सेम ही लो टेनेंट नेम।
नहीं। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अगर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो हमें सेम ही नेम रहना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम्म। आपने कंपनी अपनी स्टैब्लिश की इन ईयर ऑफ 2010, जब हम्म। एजूर के बारे में हमें पता भी नहीं था। आई नो, मींस अक्टूबर 2010 में आ गया था, बट कोई भी कस्टमर्स इनके नहीं थे उस टाइम पे। 2 से 3 साल इनको कस्टमर्स बनाने में लगे, और इंडिया जैसी लोकेशन में तो 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हम्म। ठीक है, तो आपने जब कंपनी स्टैब्लिश की उस टाइम पे आपने क्लास डॉट कॉम बना दिया। हम्म। वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर की आगे चल के हमें इन्हीं यूजर्स को क्लाउड पे ले जाना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जब आप 2022 में या 23 में जब आप क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो इन दिस केस, राइट, इन दिस केस यू आर अनेबल टू फाइंड द क्लास डॉट कॉम डोमेन। आपको ओ, अवेलेबल क्लास डॉट नहीं है। कॉम डोमेन मिल ही नहीं रहा है। हम्म। करेक्ट। सो हम्म। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये डिपेंडेंट अपने डोमेन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो we cannot use our on premises resources. We cannot change anything related to on premises. तो क्या करेंगे इसमें? ठीक है, we have another option। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, हाँ कोई डाउट हाँ, अभी? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि पहले तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है, we successfully synchronized our user, but please understand about the protocols that work in the backend behind the synchronization. Which protocols are responsible to synchronize our on-premises AD users? Clear? clear। HTTPS and service bus. HTTPS and service. These two different protocols are responsible to synchronize our users from on-premises AD to Azure Active Directory. सर्विस बस भी प्रोटोकॉल है एचटीटीपी It's a का? type of protocol, yes. ओ, क्या पोर्ट है इसकी? मैंने कभी नहीं सुना। पोर्ट नंबर 993 समथिंग करके है सर्विस बस का पोर्ट 949। आई नीड टू हम्म। वेरीफाई द पोर्ट ऑफ मैं कर सर्विस लूंगी, मैं बस। कर लूंगी। मैं कर लूंगी। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है, एचटीटीपी, अच्छा तो इंटरनेट पे ब्राउजर से ही है। सही। और HTTPS हमारा प्रोटोकॉल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज ब्राउजर के ना अप्लीकेबल ठीक। फॉर सिक्योर ब्राउजर। हाँ। सर्विस बस का पोर्ट नंबर है 8443। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है अपने पास, व्हाट इज यूज ऑफ पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। So hash is a type of method that encrypt our password. Hash synchronization responsible to protect our password for users that you synchronized from on-premises AD to Azure AD. Azure AD से on-premises AD से Azure AD में जो भी आपने पासवर्ड यूजर सिंक्रोनाइज किए हैं, वो सिर्फ यूजर नहीं है, वो पासवर्ड के साथ आपके सिंक्रोनाइज होते हैं। तो वही पासवर्ड रहेगा? पासवर्ड आपका वही रहेगा जो ऑन प्रोमाइसेस पे रखा है, आप उसी पासवर्ड के थ्रू आप अपने पोर्टल को ओपन कर पाएंगे। नाउ इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, इस सिचुएशन में आपको मैनेज करना पड़ेगा। यू यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पासवर्ड हैश। पासवर्ड हैश कैन इनक्रप्ट द डेटा। ठीक है, पासवर्ड हैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू इनक्रप्ट द डेटा। जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस का डेटा, ऑन ऑन प्रोमाइसेस का पासवर्ड है, उसको ये इनक्रप्ट करता है एंड देन ट्रांसफर टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, that will protect our password from SQL injection and any kind of attacks.
कोई भी अटैकर या हैकर सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू हमारे अगर पासवर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो पासवर्ड तो एक्सेस कर ले जाएगा बट ही इज अनेबल टू डिकोड द पासवर्ड। वो ये हमारे पासवर्ड कनेक्ट को करने के दौरान, माइग्रेशन के दौरान की चीजें सर। बिल्ट इन सर्विस ऑफ AD कनेक्ट, वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट सेपरेटली। मगर ये हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब कि भाई वो आप वहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो बीच में कोई हैक ना कर ले। हाँ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पासवर्ड हैश का। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है। कन्वर्ट AD यूजर पासवर्ड टू हैश फॉर्मेट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैश आप बोल सकते हो इनक्रिप्ट। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट पासवर्ड राइट बैक। पासवर्ड हैश एंड पासवर्ड राइट बैक दो इंपॉर्टेंट सर्विस काम करती हैं हमारे AD कनेक्ट के इन्वायरमेंट में। बहुत बेसिक सा टास्क है इनको समझने में। दिस हम्म, इज आवर Azure AD पोर्टल, हम्म, Microsoft Intra ID, and this is our on-prem domain controller, ADDS on-prem. हम्म, Using on-premises AD, you have already created multiple users. हम्म, We set up AWS, we set up GCP, और यहाँ पे हमने टाटा यूजर क्रिएट कर रखा है। डेफिनेटली हर एक यूजर का अपना खुद का पासवर्ड है, हम्म, राइट? यू एस्टैब्लिश अ पासवर्ड cloud at 123, welcome at 123, abc at the rate 123 समथिंग, ये हमने पासवर्ड दे रखा है सभी को, राइट? लेट्स टॉक अबाउट, यू आर ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज यूजर, तो अकेला यूजर नहीं जाएगा, यूजर के साथ साथ आपका पासवर्ड भी सिंक्रोनाइज होगा। हम्म, Over AWS portal, we can find the all user GCP, Tata, and AWS with their password that we configured on our on premises. लोकल हम्म, में जो हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था ना, उसके साथ ये सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। ऑल गुड? हम्म, हम्म, नाउ इंटरव्यूअर विल आस्क यू, एग्जामिनर विल आस्क यू, which service can help you to synchronize the password from on-premises AD to Azure AD? तो आप सिंपल सा बोलेंगे password has synchronization service हम्म, हम्म, responsible to sync the password from on-premises AD to Microsoft Intra ID or Azure AD. All good? हम्म, जी। Now let's talk about the another part. अगला जो स्टेप हमने डिस्कस किया था इसमें, which is password write back. What is write back password? पासवर्ड राइट बैक जस्ट अपोजिट काम करता है पासवर्ड हैश के। Okay. मींस ऐसा, हम्म, इफ यू रीसेट द पासवर्ड फ्रॉम एज्योर पोर्टल, ये आपके ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक करेगा उस पासवर्ड को। तो अभी तो हम रिसेट कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ नहीं माइग्रेट नहीं, करें तो अब इसका हम सी चलते हैं। I'm giving you the information. अच्छा। You should understand about the concept first, about the practical। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा अगर हम पोर्टल पे जाकर रीसेट भी कर देते तब भी आपको समझ में नहीं आता। मीन्स why we need to do that, you should understand about the concept। जो अभी हो रहा है उस पे आप फोकस करिए। नहीं, मगर मैं कह रही हूँ अभी तो हम, ये तो ये तो नहीं, फीचर you है should इसको clear about, माइग्रेट। you should clear about the work of password write back, simple। ठीक है। The work of password write back can reset, can synchronize the password that you reset from portal to on premises। पासवर्ड राइट। Password from Microsoft Intra ID to on premises, this is the actual task of password write back service। ठीक है। Now let's talk about the practical, how we can achieve these two different points। By default,
Password has synchronization automatic enabled. No need to configure it. Automatic enabled. इसमें हमें कोई अपनी तरफ से मैनुअल टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ये अपने आप चीजों को इनेबल करके रखेगा. बट राइट बैक के लिए यू शुड इन्फॉर्म. What you need to do? Back to our on premises जहां पे आपने AD इंस्टॉल किया है. You need to open the same AD Connect tool. Right click, open this particular icon. AD Connect का आइकन बन के आ जाएगा जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे. And click configure. In the configuration panel, we just need to click on customize synchronize option. Click next. पासवर्ड देंगे हम अपने क्लाउड वाला जो भी AWS का हमने तैयार किया है. Global. And it will redirect you on the page of जहां से हम अपने पासवर्ड हैश और राइट बैक को इनेबल करते हैं. नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट नेक्स्ट. एंड पासवर्ड हैश ऑटोमेटिक, हमने कुछ भी नहीं किया. पासवर्ड हैश बैक, पासवर्ड हैश ऑटोमेटिकली इंस्टॉल. राइट बैक आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि आप क्लाइंट से इसको एग्री करा लें पहले. समटाइम जब आप राइट बैक एक्टिवेट करते हैं ना, तो यू नीड टू जस्टिफाई कि आपने क्यों किया, बिकॉज इट इज अगेन द पॉलिसी. अगेन द पॉलिसी इन द सेंस कि क्लाइंट जो है वो मतलब कि मिस यूज करने के लिए तो आपने कहीं एक्टिवेट नहीं कर लिया. सो इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ क्लाइंट तभी हम इस चीज को एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है इसको एक्टिवेट करने की. क्लियर? ठीक है. आपको सिर्फ इसको पासवर्ड राइट बैक को इनेबल करना है, नेक्स्ट करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है फिर से. ये ऑटोमेटिक नॉट इंस्टॉल, द सर्विस मैनेज कर लेगा. जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज कर देगा पोर्टल के ऊपर. और ये बाद में करते हैं, एडी कनेक्ट करने के बाद. यूजर करने से पहले भी कर सकते हैं आप लोग, यूजर माइग्रेशन से पहले. Can we configure this before user sync? While installation we can do that. मतलब जब हम इंस्टॉल करेंगे तब भी ये ऑप्शन आएगा और वहां पे भी हम इसको चेक मार्क कर सकते हैं कि हम इमीडिएटली with the installation I wanted to synchronize the service. I wanted to activate the password right back. और बाद में भी कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. चलो हो गया ये. Right back. Done. इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड. थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, सिंक्रोनाइज होने के बाद भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा. एंड नाउ बैक टू द पोर्टल. एक बार आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे राज नाम से आया है, हमने डिस्प्ले नेम चेंज कर दिया है. रिफ्रेश करते हैं पेज को. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्टिवेट होने में बिकॉज वी जस्ट सिंक्रोनाइज द सर्विस. एंड नाउ यू कैन यूज द राइट बैक सर्विस. अब आप यहाँ से जो पासवर्ड से रीसेट करेंगे वो पासवर्ड आपके ऑन प्रेमाइसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. सही. The difference between password has and password write back. अब आप देखिए यूजर नेम चेंज हो गया क्योंकि हमने डिस्प्ले नेम गलती से एक ही डिस्प्ले नेम रख दिया था सभी का. अब आपके पास AWS का यूजर आ गया. दो यूजर दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि एक यूजर हमने क्लाउड पे पहले से बना रखा है, एक यूजर हमारा ऑन प्रेमाइसेस पे है. जिस यूजर के सामने नो का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो क्लाउड का है. जिस यूजर के सामने ऑन प्रेमाइसेस सिंक्रोनाइजेशन यस है वो आपका लोकल वाला पासवर्ड है, लोकल वाला यूजर नेम है. डाटा भी आ गया, क्लास भी आ गया, टेलनेट भी आ गया. ये तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर इस तरह से. तो
ठीक है, हर एक की 2-2 एंट्री होगी अगर डोमेन अलग है। तो क्या करते हैं इसके बाद, दोनों रखते हैं हम उसमें एनवायरनमेंट में? जब आप हाइब्रिड बनाते हो तो एज्योर पोर्टल से कोई भी यूजर नहीं बनेगा, ग्लोबल बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी यूजर नहीं क्रिएट करेंगे। और हम्म, जो नेम हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूजर नेम असाइन किया है ना, वो बहुत यूनिक होना चाहिए कि इन फ्यूचर हम उसको लोकल में नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। हम्म, ठीक है। Then this is all about synchronizing users from on-premises AD to Azure AD. We completed the part of password has, password writeback, protocol. Those protocols are responsible to synchronize our users. Any question, any doubt about the नो, topics that we completed it? नो। Next. Another important point that we need to keep in mind related to the another services. दो topic अभी इसमें और बचे हैं. One is related to password has, sorry, custom user synchronization, and the another is related to the uh, custom domain. ठीक है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें अभी डिस्कस करने हैं। हम्म, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? प्लीज लेट नो, मी नो। नो। ठीक है, तो password has, password write back. So our responsibility, we should know about the concept. ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, एंड देन विल कनेक्ट अगेन। ओके, ठीक है। ओके।